چلیں جی، یہ دونوں طرف چلے گا، کیمیا کا بھی ہے اور امراض خبیثہ میں بھی چلے گا۔ رس کپور کا نسخہ بیان کرتا ہوں، ایک رس کپور بنانے کا۔ بات یہی ہے کہ اچھے لوگوں کے پیچھے بہت لوگ باتیں کرتے ہیں، اگر آپ کے میں بہت باتیں سنتا ہوں کہ کئی انسان ایسی جو پوسٹ کرتے ہیں ہوتا ہے، ایسے کام کرو تاکہ لوگ آپ کے پیچھے دعا بھی کریں، ایسی چیزیں بیان کرو، کیونکہ میں سنتا ہوں نا، میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ سچ ہے، لوگ کرتا بھی اس طرح۔ ہمارے جو میرے جو نسخہ جات ہوتے ہیں نا، 100 میں سے 90% نسخہ جات لوگ بناتے ہیں تو وہ کامیاب ہوتے ہیں، جس کی ہماری تصدیقیں موجود ہیں بہت ساری۔ آپ سمجھیں بات کو۔ ابھی میں ادھر ہم ہوٹل میں بیٹھے تھے تو جب فیصل آباد ہم نے کشتہ سازی ورکشاپ کی ہے، میں نے ہیرے کا کشتہ دیا غلام مسعود صابری صاحب کو۔ میں نے کہا یہ سکہ گلا کے اس کے اوپر ڈالیں اور اس کو بھون لیں، سکہ کشتہ ہو جائے گا۔ انہوں نے سکہ کشتہ کیا اور وہ سٹیج پر لا کے دکھا دیا جی کہ یہ سکہ کشتہ ہو چکا ہے۔ میں نے دیکھا تو میں نے کہا یہ سکہ ابھی کچا ہے۔ میں نے پھر ان کو دوبارہ سمجھایا، انہوں نے اسی سکے کو دوبارہ صحیح طریقے سے کشتہ کیا، جو میں نے کلر بتایا تھا سیم وہ کلر آ گیا، سارا کچھ ہو گیا، وہ بنا کے انہوں نے سٹیج پہ دوبارہ آ کے چیک کروایا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بنانے والا جب بناتا ہے اس سے کمی کوتاہی ہو جائے تو وہ ہمیں برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے، بجائے کہ ہم سے رہنمائی لے لیں۔ اگر وہ چاہے تو وہ کال کر کے پوچھ بھی سکتا ہے جی یہ میں نے بنایا ہے، مجھے سمجھا دیں یہ کیوں نہیں بنا۔ اور ہم جب بھی سٹیج پہ آتے ہیں ہم وہی کشتہ جات بنا کے دکھا کے جاتے ہیں، ہم سے کیوں بن جاتے ہیں؟ ان سے کیوں نہیں بنتے؟ ہم کیوں بنا کے دکھاتے ہیں؟ اگر اس میں سچائی ہو ہی نہ تو ہم سٹیج پہ آئے نا۔ اب صبح میرے 5-6 نسخہ جات ہیں، میں نے پریکٹیکل بنانے آپ لوگوں کے سامنے بنا کے دکھاؤں گا۔ اب اسی کے اوپر آپ دیکھ لینا کتنے لوگ غلط کمنٹ کرتے ہیں۔ آپ کا جواب ہم نے بھی دیا اور وہ سامنے جو بڑھیا جی لیکن ہم پورا گروپ میں وہ ایک بدل کرتا جی وہ ایسے کرتا یہ اس کے ساتھ میں نے بھی جواب دیا اس طرح تھا۔ جی 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 مگر بات یہ نا کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسے نسخہ دیکھیں، جس نسخے کے اوپر اس نے بحث کی ہے وہ ڈائریکٹ میرے نمبر پہ کال کرتا، مجھ سے پوچھ لیتا کہ بھائی یہ میں نے آپ کا نسخہ بنایا، مجھ سے نہیں بنا۔ آ جاتا اس سیمینار پہ، آ جاتا کہ سٹیج پہ دعویٰ کرتا بھائی آپ نے یہ جھوٹا دیا، میں بنا کے نہ دکھاتا پھر بات۔ میرا کوئی نسخہ اٹھا لیں، اگلی ورکشاپ جہاں دل کرے مردان میں ہونی ہے وہاں آپ آ جائیں، جو نسخے نہیں بنتے جس سے وہ مجھے بتائیں، میں دوبارہ بنا کے دکھاتا ہوں، پھر ٹھیک ہے۔ کھلی بات ہے جی، کھلی بات، جتنے نسخے کہیں 100 کہیں گے 100 بنا کے دکھا دوں گا۔ اچھا جی، پھٹکڑی لینی ہے 2.5 تولے، انڈا پٹاس لینا ہے 5 تولے۔ ایک پیالی کے اندر نا انڈا پٹاس پیس کے ڈال دینا۔ یہ نسخہ پہلے بھی میں نے دیا ہوا لیکن پورا نہیں دیا ہوا، ابھی میں آج پورا بیان کر رہا ہوں۔ انڈا پٹاس بچھا دیں پیالی کے اندر پیس کے، اس کے اندر 2.5 تولہ پھٹکڑی سفید پیس کے اس کے اوپر ڈالنی، اوپر سے دوسرا پیالہ الٹا رکھ کے اس کے لب بند کر دیں، اس کو دھوپ میں رکھ دیں، رات کو اس کو کمرے میں رکھ دیں، دن کو دھوپ میں رکھیں، 5 دن کی دھوپ لگوا دیں۔ 5 دن بعد پیالہ کھولیں گے تو پھٹکڑی جو ہے براؤن کلر کی کلیجی رنگ کی تیل ہو کے اوپر پڑی ہوگی۔ اس پھٹکڑی کو آپ نے سرنج کے ساتھ تیل کو اتار لینا ہے، یہ آپ کا اکسیری تیل ہے۔ اس پھٹکڑی کے تیل کو اتار کے آپ اس کے اندر نا 1 تولہ سوڈیم میٹل کی تراشے کر کے نا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے، وہ ایک تراشا ڈالتے جائیں ناخن کی طرح تراشے کر کے، تو یہ سوڈیم میٹل اس طرح گھوم گھوم کے نا بیچ میں حل ہوتا جائے گا، یہ سارا حل ہو جائے گا، تیل ہو جائے گا اسی وقت 2 منٹ میں۔ جب سوڈیم میٹل تیل ہو جائے 1 تولہ کافور ڈال دیں، کافور بھی حل ہو جائے گا، یہ 3 چیزوں کا تیل ہو گیا۔ اس تیل میں 1 تولہ نیلا ڈپ کر کے اس کو چینی کے کپ میں بند کر کے ½ کلو اوپلوں کی چورے کی آگ دیں اوپر سے تابڑے کے اندر، تو نیلا سفید بن جائے گا آپ کا بلا زنگار اور باکرنٹ۔
डिप करके निकाल लेना, बस आग दे देनी। नीला सफ़ेद हो गया, बावजन होगा आपका, सफ़ेद होगा, बिला जंगार और बाकरंट, जो कीमियाई नीला है। इस नीले को उठा के उसी तेल के अंदर डाल दें, हल्का सा तशबिया दे दें, नीला हल हो जाएगा। अब ये पक्का तेल हो गया आपका, पहले कच्चा था अब पक्का हो गया। अब इस तेल से गंधक आमला सर को खरल तशबिया करेंगे, मोमिया हो जाएगी। 5 तोला मोमिया कर लें। उस 5 तोला मोम को 1 तोला रस कपूर के ऊपर लपेट दें। लपेट के उसको नमक 2 किलो ले लें, उसके दरमियान में कढ़ाई में रख के 2 चौबी आग पे 24 घंटे पकाएं। ठंडा करके रस कपूर निकालें। आपका रस कपूर अक्सीरी निकलेगा, कायमुन नार भी होगा, जारी और गवासी भी होगा। चावल का चौथा हिस्सा खुराक दें। 7-7 दिन के वक्फे से कैंसर के मरीज को दे दें। 4 खुराकें काम ना करें, फिर आप कहना इंशाल्लाह ना काम करेगा तो आइंदा से स्टेज पे आना छोड़ दूंगा। इतना अक्सीरी रस कपूर है। ये कीमिया में भी काम देता है और खुराकी भी काम देता है। अब लोग कहते हैं जी अमराज खबीसा क्या है। मैंने बहुत सारे हुक्मा को देखा जिनको यही नहीं पता अमराज खबीसा है क्या और शुरू कहाँ से होता है। अमराज खबीसा जब जिगर का खारजी रास्ता ब्लॉक होना शुरू हो जाए और सफरा फासद मादे बलगम रेशा खून में शामिल होना शुरू हो जाए तो अमराज खबीसा पैदा होना शुरू होते हैं, जिसमें सोराइसिस की बीमारियां भी आ जाती हैं। उसके बाद थायराइड भी आ जाता है। उसके अंदर बगंदर भी आ गया, सुजाख भी आ गया, गिल्टियाँ रसौलियाँ भी आ गई, उसके अंदर ट्यूमर वगैरह भी आ गए सारे, फिंसी फोड़ा भी आ गया, कोड़ भी आ गया। जितने बलगम रेशा पीप पस जितने भी ये अमराज हैं ये सारे ही अमराज है खबीसा। तो ये रस कपूर उन तमाम अमराजों में, क्यों कहता हूँ एक रस कपूर 18 मर्जों पे काम करेगा, तो अमराज खबीसा में गिनने 18 से ज़्यादा ही मर्जें बनती हैं, तो वो अकेला उन पे सब पे काम करता है। तो इसको कहते हैं जो दवाई एक से ज़्यादा मर्जों के ऊपर काम करे वो कायाकल्प होती है। तो ये हकीकी कायाकल्प है। मैं खुद मेरी कितनी वीडियोस पढ़ी हैं, जो कैंसर के मरीज़ मेरे ठीक हुए हैं, शाह साहब ने तस्दीकी वीडियो लगाई हैं। मरीज़ों को मैंने पहले जब आए हैं उस वक्त वीडियो बनाई है, 1 महीने की दवाई के बाद रिज़ल्ट की वीडियो बनाई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मरीज़ ठीक हुए हैं। मेरे पास बड़ा रश होता है कैंसर के मरीज़ों का। तो ये रस कपूर चलता है। बाकी इंशाल्लाह कल मैंने एक रस कपूर बड़ा अक्सीरी बनाना है जो सिर्फ 5-10 मिनट में बनेगा, वो प्रैक्टिकल बना के दिखाऊंगा। एक नीला अमराज खबीसा का बना के दिखाऊंगा जो बिला जंगार भी होगा और बावजन भी बनेगा और अमराज खबीसा के ऊपर अक्सीरी काम करेगा। सिर्फ 10-15 मिनट में बनेगा। इसी तरह हड़ताल वर्किया एक बनाएंगे, ये पूर्ति होगी 10-15 मिनट में, वो भी तैयार करेंगे। वो भी बड़ा काम करती है। मुसफ़ी खून है, क्लाट वगैरह ख़त्म करती है, दिल के बंद वाल खोलती है, खून को साफ़ करती है, कुव्वत बा पे, फालज लकवे पे, असाबी पट्ठों की कमज़ोरी पे काम करती है। तो ये मेरा पहला नुस्खा जी इंशाल्लाह अभी बाबा नईम हैदर साहब को देते हैं। वो भी अपने जो फ़न में से अपने इल्म में से कुछ आपकी नज़र करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी दोस्त ने सवाल करना है, कोई बात करनी है तो मैं हाज़िर खिदमत हूँ, तो वो पूछ सकते हैं बात मुझसे। अच्छा, कोई हकीम अजीज़ साहब ने कोई बात पूछनी है या कोई कहनी है?
کیوں سر؟ میں نے کہا سر کوئی بات پوچھنی ہے، کوئی بات کہنی ہے، کوئی سمجھانی ہے، کوئی کہنی ہے تو معذرت کریں۔ اچھا، بات چل رہی تھی کہ میرے پیارے بزرگ محترم نعیم قاسمی صاحب نے بڑا پیارا عمل دیا ہے اور فہیم سنیاسی صاحب نے بڑا پیارا عمل دیا ہے، تو الحمدللہ میں صبح 4 پریکٹیکل کروں گا۔ نسخے میں نے تقریباً لکھ کے رضوان شاہ صاحب کو دے دیے ہیں۔ وہ جو نسخے ہیں جو میں صبح فارمولے شیئر کروں گا وہ انشاءاللہ میرا اللہ چاہے اور مجھے سچ بلوائے تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس سے پہلے یونیفیکیشن پہ نہیں آئے ہوں گے اور ان کا پریکٹیکل بھی ہوگا۔ ان میں میرا پہلا فارمولہ ہوگا جو کیمیا کو سمجھتے ہیں، یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کی میں بات کرنے لگا ہوں، یہ ایک ایسا ایلیمنٹ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ اپنی پاک کلام میں بھی ذکر کیا ہے، اور جو کیمیا کو اور سنیاس کو بڑی بریک بینی سے دیکھتے ہیں وہ اسے آئرن کے نام پہ جانتے ہیں، لوہے کے نام پہ جانتے ہیں۔ تو میں نے جب مجھے میسج آیا کہ منیر ورکشاپ میں ہم نے جانا ہے، تو میں نے اپنے دماغ اور عقل و فہم سے سوچا کہ میں ایسا کام کروں کہ جو میرے سے پہلے کسی نے نہ کیا ہو یونیفیکیشن پہ۔ تو انشاءاللہ تعالی جو لوہا 1600 کی ڈگری پہ میلٹ ہوتا ہے وہ صبح میں چھوٹی سی بھٹی پہ میلٹ کروں گا بغیر ورقیہ کے، اور ورقیہ نہیں ہوگی، اور جب وہ میلٹ ہو جائے گا پھر اس کے بعد چاندی کی ہیٹ پہ ہی میلٹ ہوگا، اور اسے آپ ہامن دستے میں کوٹیں گے وہ پاؤڈر ہو جائے گا۔ اس کے نیچے جتنا مرضی پارا ڈال دیں، چاندی پارا ڈال دیں، سکہ پارا ڈال دیں، جست پارا ڈال دیں، کوئی بھی دھات لگا کے ڈال دیں، کیلا پارا ڈال دیں، وہ انشاءاللہ لوہا نہیں جانے دے گا۔ نیچے بے شک آپ پلیٹ کے اندر فل چولہا کھول دیں اور وہ آہستہ آہستہ لوہا پارے کو اپنے اندر لیتا جائے گا اور لوہے کا رنگ سرخ کرتا جائے گا۔ ایک نسخہ میرا یہ ہوگا۔ دوسرا فارمولہ میرا وہ ہوگا کہ ہم وہ بھی تھوڑے وقت میں 2 چیزیں لیں گے بازار سے، اس کے ساتھ لوہے کا برادہ لگائیں گے، لگا کے اس کو بھٹی میں چرخ دیں گے، اس کا میلٹنگ پوائنٹ بھی نیچے آ جائے گا اور وہ ورقیہ نہیں ہوگی، اس کا میلٹنگ پوائنٹ بھی نیچے آ جائے گا، وہ بھی چاندی کی ہیٹ پہ پگھلے گا اور میگنٹ فری ہوگا، چکر بھی کھائے گا، اسے مقناطیس بھی نہیں پکڑے گا۔ جو کیمیا کے متعلق جانتے ہیں نا وہ لوہے کو بخوبی جانتے ہیں۔ آپ ڈائمنڈ لگا لیں، کاپر لگا لیں، جو مرضی لگا لیں، آئرن کے بغیر کیمیا نامکمل ہے۔ ایک دوسرا نسخہ میرا یہ ہوگا۔ تیسرا نسخہ میرے مطلب کا ایک معمول ہے، میرے مطلب کا ایک طریقہ ہے، میں ایک بڑے عرصے سے بات چلا رہا ہوں۔ 2 چیزیں سادہ سی ہیں، انشاءاللہ تعالی گردے کی پتھری، گردہ ہوا پیدا کرتا ہو یا گردے میں سویلنگ ہو، گردے کے آرٹرینل پینل میں پرابلم ہو، اس کا بلڈ یوریا، کریٹینین اور پروٹین کا اخراج ہوتا ہو، وہ اس کو کور کرے گی اور اس کی سٹون کو ختم کرے گی، وہ میں صبح نسخہ دوں گا۔ چوتھا فارمولہ میرا ہوگا، میں عقیق صبح بناؤں گا، جن کی ہارٹ بیٹ نارمل نہیں رہتی، جن کی ہارٹ بیٹ آؤٹ آف کنٹرول ہونے کے علاوہ ڈم ہو جاتی ہے، جن کے اندر بیٹ جسے کہتے ہیں کہ آپ کا دل، آپ کا اینٹریکل وینٹریکل تقریباً 25-30% ورک کر رہے ہیں، وہ انشاءاللہ صبح عقیق، مروارید اور نقرہ کا فارمولہ دوں گا انشاءاللہ۔ میرے اللہ نے چاہا، میں نے کبھی سونے چاندی کا دعویٰ نہیں کیا، میں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ میں دوائی دوں گا اور اس دوائی میں شفا ہوگی، میں نسخہ دوں گا، شفا میرا اللہ ڈالے گا، اور نہ میں نے کبھی سونے چاندی کا وعدہ کیا تو نہ میں نے کبھی اس طرح کی بات کی ہے۔ وہ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا اتنا زبردست رزلٹ ہوگا، وہ بھی میں بناؤں گا، لوگ آزمائیں، کسی کو شفا ہو تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب میں آپ کو ایک چھوٹا سا فارمولہ دینے لگا ہوں امراض خبیثہ پہ، گلٹیاں پہ، اور بالکل سمپل سا فارمولہ، اور اسی فارمولے سے 5-6 فارمولے آگے بنتے ہیں۔ یہ فارمولہ میری اور
फहीम भाई की अब आपस में मीटिंग हुई ना बैठक में, ये फार्मूला मैं उधर दे भी चुका हूँ और मेरे ख्याल में ये फार्मूला सुन के खुश भी हुए होंगे। कम खर्च बाला नशीन, इंशाल्लाह फटकरी से हीरे का काम लेंगे। 200 ग्राम फटकरी ले लेनी है आपने, इसको टेलगम पाउडर कर लें और 200 ग्राम अनबुझ चूना ले लेना है। इन दोनों को टेलगम पाउडर करके फिर इकट्ठा करके जब खर्ल करेंगे, इनके अंदर इनका रिएक्शन से एक अजीब किस्म की गैस पैदा होती है। मुंह पे मास्क लगाना है, ऐनक वगैरह लगानी। जब वो आपसे बर्दाश्त ना हो तो इस अमल से पहले आपने एक काम और करना है। एक नीले रंग की ड्रमी आती है बाजार में, जिसके ऊपर ब्लैक रंग का ढक्कन लगा होता है और साथ लोहे का रिंग होता है। वो 5 लीटर वाली ड्रमी ले लेनी है। जब आप 200 ग्राम फटकरी को पाउडर करके और अनबुझ चूने को लहदा पाउडर करके आपस में मिलाएंगे, इनका तकरार अमल होगा ना, तो यहाँ पर एक गैस पैदा होगी। कुछ लम्हे इस तरह की खरलाई करनी है कि आपको वो बर्दाश्त करना पड़ेगा। जब वो ज़्यादा हो जाए तो दोनों को फ़ौरन ड्रमी में डाल दें और साथ ही 3 लीटर पानी डाल के फ़ौरन ढक्कन बंद करके एक रिंग लगा दें ऊपर की जगह पे। 3 दिन तक उसको देखना नहीं है। 3 दिन के बाद उसको हिलाएं। हिलाने के बाद उसका मुकद्दर ले लें। मुकद्दर लेने के बाद उसे खुश्क करें। इसमें जो भी नमक हासिल हो, जिस तरह का भी नमक हासिल हो, किसी किस्म का सरासिस हो, किसी किस्म की स्किन प्रॉब्लम हो, किसी किस्म की गिल्टियाँ हो, किसी किस्म के फोड़े फिंसियाँ हो, किसी किस्म का मसलन ब्लड के रिलेटेड कोई भी मसला हो, बगाड़ पैदा हुआ हो, इन्फेक्शन हो, हमारी बॉडी के अंदर 90% बीमारियां ब्लड सर्कल की वजह से हैं और ब्लड इन्फेक्शन की वजह से हैं। गौर करके देख लें आप। उनके लिए 1 से 2 चावल सुबह और 1 से 2 चावल शाम हमरा लस्सी के देना है। लस्सी के साथ इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो 3-4 दिन के अंदर अंदर आपके अंदर रिजल्ट आइएगा। और शुगर तक को ये कंट्रोल करता है और पुराने से पुराने बिगड़े से बिगड़े जख्म को ये कंट्रोल करता है। ये हो गया यहाँ तक। अब आगे क्या करना है कि जब ये अमल हो गया खुराकी तौर पे, अब इसको पोशाकी लेकर चलता हूँ। जब 200 ग्राम फटकरी और 200 ग्राम चूने अनबुझ को आप खर्ल करेंगे, जब उसके अंदर तकरार अमल हो के गैस पैदा हो तो रोगनी आंडी जो पहले से सैंपल की हो, आपने उसमें आधा ये वहाँ नीचे डालकर ऊपर 2 तोले 1 तोला से 2 तोले सिम्बल पर शीशा की डली रख के बकाया मवाद ऊपर डाल के उस ढक्कन को फौरन सैंपल कर देना है। यानी दाब बना के आधा फटकरी और चूना नीचे, बीच में सिम्बल पर आधा ऊपर डाल के सैंपल करके रख दें। जब बाद सैंपल खुश्क, इसको ऊपर से 5-6 किलो की, 7 किलो की, 8 किलो की भी आग दे दें। ये सिम्बल पर आपका चरख मार कर बैठा होगा। ठीक है। इसका 1 ग्राम 1 तोला तांबे पर डाल दें। डालने के बाद उसे तजाब शजाब करें। सोने चांदी का मुझे नहीं पता, मैं तबीब हूँ, हिकमत की रूह से जो मैंने तजुर्बा किया हुआ मैं वो बताऊँगा। इतना मुझे पता है, ये तांबे चांदी पे नहीं बैठता, सोने पे नहीं बैठता, ये सिल्वर पे बैठता है। और ये पता नहीं क्या है, इसे कुश्ता कर लें आका दूध लगाकर, आपका वाइट ऑक्साइड तांबा भी हो जाएगा। दुआओं में याद रखें। ये आपका दोस्त टीम बाबा नहीं मैं तर अब किस दोस्त की बारी है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा दोस्त, मैंने जो नुस्खा आपको बताया था वो आप लोगों की समझ में आ गया है? अगर नहीं आया तो मुझसे पूछ सकते हैं कि ये यहाँ से आगे कैसे ये चलेगा। ये नहीं कि खामोश होकर बैठ जाएं। नहीं समझ आया तो पूछ सकते हैं। ये बहुत कमाल का अक्सरी नुस्खा है। आप लोगों की समझ में नहीं आया तो ये अलग बात है। अगर आपकी समझ में आ गया है तो मुझे बताएं कि हाँ जी समझ में आ गया है। इसको बनाएं आप, इंशाअल्लाह ताला इससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेंगे आप। शुक्रिया, वासलाम। गुर्दे फेल हो जाते हैं, लोग डरते हैं।
मैंने ये सुना है कहते कि रोटी खाने से बनाई चली जाती है। एक मिनट शाही, आपने सुना है कुश्ता खाने से गुर्दे फेल हो जाते हैं, मैंने सुना है कि रोटी खाने से बंदा अंधा हो जाता है। नहीं समझ लगी? मैंने सुना है कि रोटी खाने से बंदा अंधा हो जाता है। नहीं ना होता? नहीं होता। देखिए एक मिनट शाही, आप मेरी तरफ आपने फेस रीडिंग रखनी है, दिल्ली के साथ बात करूंगा। गुर्दे खराब होने का एक बकायदा प्रोसेस है, गुर्दे खराब होने का एक बकायदा सिस्टम है। पहले ये बताएं कि ये जो हम कुश्ता खाते हैं क्या ये ब्लड यूरिया बढ़ाता है, ये जलोदर की तरफ ले जाता है, या क्या करता है? ऐसी बात नहीं है, ये कुछ दोस्तों की तूफाने बदतमीजी है। हाँ बरकैफ कुश्ता जो हो ना उसे एक म्यार पे काबुल उस्ताद की शिगिर्दी में अच्छे तरीके से मुकम्मल प्रोसेस के साथ तैयार करें। और एक बात, हम जो नुस्खे बोलते हैं ना, फहीम भाई ने बोल दिए, कासमी साहब ने बोल दिए, या किसी भी दोस्त ने बोल दिए, उनका इस पे तजर्बा है, प्रैक्टिकल है। आप कोई काम करते होंगे ना, वो जो काम करते आप होंगे उसका आपकी उसमें महारत होती है। हमारे पंजाब में एक कहावत है पंजाबी की कि जो अपने काम का भेदी है ना अपने काम का चोर भी है, यानी अपने काम का फनकार है ना अपने काम का चोर भी है। चोर का नहीं मकसद, चोरी का ये नहीं मकसद होता कि वो चोर होता है, उसे उसके असरार और रमूज की हकीकत का पता होता है। इसलिए मेरे भाई ये बात नहीं है, जो अच्छे और म्यारी कुश्ते होते हैं ना वो कभी गुर्दों को खराब नहीं करते। गुर्दों के खराब होने का एक सिस्टम है। बाबा जी इसमें देखिए, दुनिया में गुर्दे सबसे ज्यादा कहाँ होते लोग हैं? दुनिया में गुर्दे सबसे ज्यादा किस मुल्क में फेल होते हैं? अमेरिका में, यूएसए में। आप नेट से सर्च करें कि दुनिया में किडनी फेलियर के केस सबसे ज्यादा किस जगह पर रिपोर्ट हुए हैं? अमेरिका में होते हैं। क्या अमेरिकन गोरे कुश्ते खाते हैं? एक जदीद तहकीक भी है, सुकून आवर चीज हमेशा आपके ज़ाहिर हिस्सा को नुकसान देती है। सुकून आवर, अब आप समझ लें कि वो किन की चीज़ें सुकून लाते हैं। मैं एक छोटा नुस्खा देना है। अच्छा, जो गुर्दे फेल होने वाले होते हैं या डायलिसिस मरीज, तो क्या वो तांबे के कुश्ते से ठीक नहीं हो जाते? बिल्कुल होते हैं, क्योंकि तांबा एंटीडोट है, जिंक एंटीडोट है, जिंक एंटीबायोटिक एंटी एलर्जिक है। जिंक आपके मिनरल में आता है, विटामिन में आता है। आप कोई सप्लीमेंट या विटामिन की टेबलेट लेंगे ना उसके अंदर जिंक लिखा होगा। और मजे की बात है, हम तो जो कुश्ता बनाते हैं, मैं आपको ऐसी चीजें बना देता, हम जो कुश्ता बनाते हैं उसमें बकायदा मेहनत, यार इसमें जंगार ना रह जाए, यार ये कच्चा ना हो, यार इसका लेवल ये हो कि ये पानी में तहलील हो जाए, यार इसका लेवल ये हो कि इसमें ये म्यार आ जाए। हम उसको म्यार को चेक करते हैं। क्यों? हमारे पीछे हमारे भाई बड़े तनकीद करने वाले हैं, बाहर से हमें तनकीद नहीं इतनी आती, ठीक है ना, जो घर से आती है, ठीक ना। और दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, ये बात है। हमें हमारे भाई तनकीद की जात में लाते हैं, या हसद की वजह से या वैसी उनकी ईगो हर्ट हो जाती है। एक बात। दूसरी बात, हम कुश्ते को म्यार पे देखते हैं, और वो जो कापर देते हैं वो डायरेक्ट कापर सल्फेट देते हैं, वो आयरन सल्फेट डायरेक्ट देते हैं, वो आयरन सल्फेट मैग्नेट पकड़ता है। हम कहते हैं अफलाद का वो कुश्ता हो जिसे मखनातीस ना पकड़े, पानी में तहलील हो जाए या पानी के ऊपर तय बना ले, उस पर हम मुख्तलिफ किस्म की लैबोरेटरी करते हैं। ये बात होती है। अब मैं आपको एक नुस्खे पे, हमारी पंजाबी में कहते भूखी बैठी है। अच्छा, अब मैं आपको एक छोटा सा अमल देने लगा हूँ। ये फहीम भाई का और मेरा उधर ये भी बात हुई थी। आपने लेना है 5 तोले कपूर, 5 तोले कपूर, 1 पाव फरकड़ी सफ़ेद, 2 लीटर मिट्टी का तेल, स्टील की बाटी ले लें, उसमें कपूर डाल दें। कपूर डाल के उसके ऊपर 1 पाव फटकरी पाउडर करके डाल दें, और उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाल दें 2 लीटर, और इसे खुली जगह पर ऊपर से माचिस की तीली लगा दें। यहाँ आग लग जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कहेंगे तो मैं सुबह ही प्रैक्टिकल कर दूंगा, ऊपर तीली लगा देंगे तो आग लग जाएगी। जब ये तेल खुद ब खुद जल के खत्म हो जाएगा, आपकी फटकरी ऊपर जितना ओपला नहीं होता, थापी नमा खिकर बनी होगी।
फटकरी उतार के साइड पे रखे और नीचे से कपूर निकालें, कपूर आपका चरख खा के बैठा होगा और इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह ने चाहा तो कैमोनार होगा। वो कपूर उठाएं, 1 तोला फास, उसके चावल काट लें। मैंने अपने बाबा एक्सपेरिमेंट पे चावल काटने का तरीका बताया हुआ है। फास के चावल काट लें, कपूर को खरल में पाउडर करें, 1 चावल उठाएं, कपड़े से साफ करें और चावल कपूर के सेंटर में दे दें और ऊपर उसके भी कपूर हो, नीचे भी कपूर हो, ऊपर उसके डंडा रख के ना वहीं पे हल्का सा धुआं छोड़ेगी, फास्फोरस गैप हो जाएगी, तहलील हो जाएगी। इसी तरह करते करते आपने 1 तोला फास 5 तोले कपूर को दे देनी है। जब 1 तोला फास 5 तोले कपूर में हल हो जाएगी, ये आपका एक लिक्विड कवाम टैप मुआसा खरल में बन जाएगा। जब इसका धुआं शुआ बंद हो जाए, इसे वो शीशी नहीं होती ब्राउन कलर की, वो ले लें या पैरेक्स की साइंटिफिक स्टोर से ऐसी शीशी ले लें, उसमें ये मवाद डाल के शीशी को तैयार करके चावलों में दम पुख्त कर लें। ये तरीके फहीम भाई ने भी बताए हुए हैं, दम पुख्त करने के मैंने भी बताए हुए हैं। अच्छा, एक बंदे को सैंपट करना नहीं आता, मिट्टी बनाने नहीं आती, वो भी कीमिया पे तनकीद करता है। अच्छा, उसको दम पुख्त कर लें। जब दम पुख्त करेंगे ना 15 से 20 मिनट या 25 मिनट, जब निकालेंगे वो आपका तेल बना होगा। अब क्या करना है, इस तेल को कपूर और फास का आपका तेल कैमोनार जारी गवासी तैयार है। इसमें नीला डिप करें, डिप करके पाव आधा किलो कोले दहका लें। जब कोले दह जाए, आज ये कोले इसके से कोले से 6 इंच ऊपर चिमटी से पकड़ कर नीला डिप किया हुआ ऐसे ऐसे घुमाएं, हल्का तस्वीर देंगे तो ये नीला आपके देखते देखते हाथों में सफेद हो जाएगा। और जो नीला सफेद है ये मेटल को भी तेल करता है, फास को भी तेल करता है। और मजे की बात यह है कि 1 तोला पारा कठियाली में डालकर कोलों पे रखे, जब कोले में पारे में हरारत आए तो चुटकी चुटकी नीले की मारेंगे, नीला वहीं पर पारा वहीं पर आपका कुश्ता आ जाएगा। चक्कर खाता है नहीं खाता, सोना बांधता नहीं बांधता। एक बात ये कि ये नीला मैं अल्हम्दुलिल्लाह अमराज खबीसा पे, गुर्दों के आर्डिनल कैंसर पे, ब्रेन ट्यूमर पे और कई मामलात में मैंने ऐसे ऐसे मरीज देखे जिनके अज्जा बिगड़ चुके थे, अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। इसमें मेरा कोई कमाल नहीं, यही नीले की खुराक आधा चावल मैं देता हूँ। तो ठीक है, दुआओं में याद रखें। आप फहीम भाई बेताब हैं, इनको दावत देते हैं। अभी भाई ने सवाल किया था जी कि कुश्ता जात जो हैं वो गुर्दे फेल करते हैं कि नहीं। सिंपल सी बात है, एक एलोपैथिक के डॉक्टर से ये बहस हुई तो उसने कहा जी आपके हकीमों के जो कुश्ते हैं वो गुर्दे ख़राब कर देते हैं। मैंने कहा जी वो कैसे ख़राब करते हैं। वो कहता जी आपके कुश्ते के एटम मोटे होते हैं, वो जिगर उसको पास नहीं करता। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा जिस चीज़ को जिगर पास नहीं करता, जिगर क्या करता है। कहता जी वो मैदे को वापस दे देता है। मैंने कहा अगर वो मैदे को वापस दे देता गुर्दों तक तो वो क्या ही नहीं कुछता, तो ख़राब कैसे कर दिया गुर्दा उसने। बात की समझ आ रही है। अगर कुश्ते के एटम मोटे हैं, जिगर ने पास नहीं किया, गुर्दे को दिया ही नहीं, तो गुर्दा खराब कैसे हो गया। गुर्दे में वो चीज जाएगी जो खून में जज़ब हो जाएगी, जज़ब हो जाएगी। जिगर जिसको पास करेगा वो गुर्दे तक चीज जाएगी, इसलिए कुश्ता गुर्दों को खराब नहीं करता। जहाँ तक मैं समझा इस दोस्त उन्होंने कहा कि गुर्दों को खराब करें, इसका मतलब ये नहीं कि जो कुश्ता है वो गुर्दों को खराब करता है। इसने आज इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर इनाम भी देना चाहता, ठीक है जी हमारी कुश्ता साज इतनी बैठे हैं, मैं उसको बिल्कुल मेंशन जी आप बोलें, बात करें। मेंशन नहीं करना चाहता उससे। बना रहे कुश्ता और कह रहे कि मैं हकीम नहीं हूँ, इंशाल्लाह अब इरादा है हिकमत करनी। जी अब ये जब कुश्ता बनाएगा जी इसको पता नहीं कि मैं इस कुश्ते को कहाँ पे इस्तेमाल हाँ ये बात है। इस चीज पे उन्होंने कहा गुर्दा उस वक्त फिर होगा। हजरत ने फरमाया कि जैसे ही हम
तो के लिए हार्ट बीट के लिए, अब हार्ट बीट कितने अकसाम के होते हैं, इसमें ऐसा भी आता है कि थायराइड की वजह से हार्ट बीट आ जाता है। अगर हम सिर्फ हार्ट बीट को खून में जो क्लॉटिंग समझे तो थायराइड वहाँ पे कहाँ चलेगी। इस तरह जब तक तशखीस बीमारी की ना हो, हम कहते हैं एक हकीम कीमिया करे, लेकिन वो भी हकीम, जब हकीम नहीं होगा तो फिर नहीं चलेगा। इसलिए आज इस संन्यास ग्रुप में देखिए बात को जी बोले इस भाई ने जो काम है इसलिए उसमें हो कि आज हमने इनसे पूछा, मैंने कहा ठीक है, मैंने 4 साल का कोर्स होता है, सबको पता है कि 4 साल का कोर्स FTJ वो कहाँ पे होता है, वो किया हुआ है। काफी अरसे से मेरा इरादा नहीं था, लेकिन बाप दादा का नुस्खा आज भी बना रहा हूँ। इरादा अब आहिस्ता आहिस्ता शौक पड़ रहा है कि इस नुस्खे को मैं आगे इस्तेमाल करूँ। अब जब तक वो बनाता रहा कॉन्फ्रेंस में बनाता रहा, तो इसको फिर वो कैसे प्रोवाइड समझे। हम कहते हैं कि अगर तदबीर हो, वो संन्यास हो, जब ये सारे फिक्स पूरे हो, सलाम है उसको कि एक तबीब संन्यास की तरफ भी जाए, उसको समझ भी आए कि ये यहाँ इस्तेमाल होता है। जी मुझे सारी आपकी बात की सारी समझ आ गई है। यूनिफिकेशन तिब्बी फाउंडेशन की जो बुनियाद है शाह साहब ने 2018 में रखी, और झेलम में पहला प्रोग्राम इन्होंने करवाया जिसमें मैं शामिल था। इनके पहले प्रोग्राम से लेके आज के प्रोग्राम तक मैंने कोई प्रोग्राम मिस नहीं किया। वहाँ पे ऐसे सन्यासी भी आए हुए थे जो दावेदार थे कि हम बहुत बड़े सन्यासी हैं, जिनसे कली का कुश्ता तक नहीं बना। ठीक है जी, हकीम तो दूर की बात है ना, मैं सन्यासियों की बात कर रहा हूँ। आगे दूसरी बात ये है कि हमने ये यूनिफिकेशन जो चलाई है या कुश्ता साजी के ऊपर काम कर रहे हैं, तो हमारी तिब यतीम और मस्कीन थी। हमने इसकी यतीमी और मस्कीनी ख़त्म करने के लिए ये मिशन बनाया था। मेरे पास इल्म था, शाह साहब के पास सन्यास का इल्म नहीं था, इनके पास था ही नहीं। ना होने के बावजूद ये लुटाने के लिए तैयार हो गए। तो जब मैं पहले प्रोग्राम में गया, मैंने देखा कि जिसके पास चीज़ ही नहीं है तो वो देने को तैयार है, मेरे पास है तो मैं क्यों ना दूं। जिसके पास इल्म है ही नहीं वो देने को तैयार है, और इतना बड़ा काम कर दिया, इतनी बड़ा प्रोग्राम रख दिया, पूरे पाकिस्तान के तिब्बा कराम और सन्यासी एक प्लेटफार्म पे इकट्ठे कर दिए। तो मैंने कहा यार मेरे पास है, मैं क्यों ना दूं, मैं कोई कब्र में ले जाऊंगा। उनका जज्बा देख के मैं उनके साथ खड़ा हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी खड़ा हूँ, और जब तक हैं साथ खड़े रहेंगे। पाकिस्तान की तिब को बेहतर करने के लिए, आप तबीबों को कुश्ते की समझ आए समझाने के लिए ये हमने काम शुरू किया हुआ। मैं यहाँ पे आया हूँ और शाह साहब सामने बैठे हैं, बता दें पहले दिन से आज तक 1 रुपये का भी दावेदार हुआ तो वो बताएं। अपनी जेब में से, मेरी गाड़ी की डिग्गी में देख लें, ये बाहर खड़ी है गाड़ी, कुश्ता साजी का सारा सामान गाड़ी की डिग्गी में लेके आया हूँ। मैंने 10,000 रुपया फंड देने का ऐलान किया था, मेरी मिसेज ने कहा नहीं आपने 20,000 देना है, तो 20,000 रुपया फंड भी देना है, अपने सीने के राज भी देने हैं, और कुश्ता जात बना के भी दिखाने हैं, खर्चा भी करके हैं। पेट्रोल 30,000 रुपये का पेट्रोल है फैसलाबाद से आने जाने का। अब बताएं कि हमने लिया कि आपसे। फिर लोग कहते हैं जी ये बुरे हैं, ये गलत हैं, हम तो सारा कुछ लुटाने के लिए आए हैं आप लोगों के पास। अभी आप खुद समझदार हैं, मेरा ख्याल है आपकी बात का जवाब मिल गया होगा। तो हम कुश्ता जात की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं जी। बाकी आप दोस्त कीमिया के लिए भी आए हैं, तो एक नुस्खा कीमिया का मैं भी बयान कर देता हूँ। वैसे कल भी मैंने एक देना है नुस्खा, वो प्रैक्टिकल है, इंशाल्लाह जो दोस्त बनाएगा ज़रूर कामयाब होगा। मैं थोड़े ही देता हूँ कीमिया के नुस्खे, लेकिन होते मेरे ज़रा ज़्यादा लंबे भी नहीं होते और कामयाब भी होते हैं। 5 तोला टाटरी लेनी है, 7 लीमू दानेदार लेनी है, 5 तोला निशादर ठीकरी लेना है, कोई केमिकल नहीं है, कोई जड़ी बूटी नहीं है, कोई जंगलों में नहीं जाना, कहीं नहीं, पंसार पे जाएं, सामान लाएं, काम कर लें। 5 तोला पारा, 5 तोला टाटरी, 5 तोला निशादर। निशादर और टाटरी को पीस के खूब यकजा कर लें, ये मलम सी बननी शुरू हो जाएगी खरल करते करते।
चाय पीने वाला कप लेना है, उसमें पारा डालना है, ऊपर ये टाटरी और निशादर डाल देना है। ये मेरा प्रैक्टिकल शुदा नुस्खा है, दावा है मेरा। जो बंदा भी बनाएगा इंशाल्लाह ज़रूर बनेगा, नहीं तो मर्दान हमने मैदान लगाना है इंशाल्लाह, फिर उधर बना के भी दिखा दें। कप में ये चीज़ें डाल दें, पहले पारा, ऊपर टाटरी निशादर। कप को ज़मीन के अंदर इतना 1 इंच ज़मीन के अंदर दबा देना, जहाँ तक पारा है उतना ज़मीन के अंदर हो, बाकी बाहर हो। 3 पाव कोयले लेने हैं बाजार से, लकड़ी के कोयले, छोटे छोटे करके कप के साथ जोड़ देने हैं इस तरह गोल, और बाहर से ईंटें लगा देनी है ताकि कोयले हवा से इधर उधर बिखरे नहीं। उसमें तेल डाल के आग लगा दें। नहीं, खुला रखना है जी, कोई ढकना नहीं देना। ये कोयले जल के ठंडे हो जाएंगे, निशादर और टाटरी पक के गोल्डन कलर के हो जाएंगे, सुनहरी रंग के, फिर पक के ये काले रंग के हो जाएंगे, चिंगर सा बन जाएगा। जब ठंडा हो जाए पानी डालें, टाटरी और निशादर धो के निकाल दें, जला हुआ पारा जो है वो साफ कर लें। इसके अंदर नया टाटरी निशादर डालें। इसी तरीके से दूसरी आग आधा किलो कोयलों की दे दें, तीसरी फिर आधा किलो कोयलों की। 3 अमल करने हैं जी। इस पारे को निकाल के इसी चीनी के कप में 1 ग्राम तोल के डालें, कप में बंद करके ऊपर से 2 किलो की भड़के की आग दें, ठंडा करके निकालें। लर्जा पारा 1 ग्राम पूरा निकलेगा अंदर से। सिर्फ 3 अमल हैं, कायमो नार लर्जा पारा हो गया, जारी भी है, गवासी भी है। 3 अमलों में 2 किलो की आग में से पारा निकलता है। ये 1 तोला पारा उठा लें, 1 तोला पोटाशियम आयोडम क्रिस्टल ले लें, दोनों को खरल में डाल के खरल करेंगे। ये हल्का सा एक्शन करके सुर्ख रंग का कुश्ता तैयार हो जाएगा 2 मिनट में। डबल चांदी चरखा लें, उसके ऊपर डाल के नियार कर लें, आपका ज़र बैठेगा। ये पारा आपका शमस होगा, रंगीन भी होगा, तेजाबी भी होगा, सारा कुछ होगा। शर्त ये है पारा कायम चाहिए। कच्चे पारे से लोग अमल करते हैं, कच्चे अमल करते हैं, होते नहीं हैं। इसी पारे को ले लें, 1 तोले को, 1 तोला सुरख काई जिसको सोडियम डाइक्रोमेट बोलते हैं, हवा में तेल होती है, उसके साथ पारे को खरल कर दें। 1 उबली हुई देसी अंडे की जर्दी खरल कर दें, चीनी के कप में बंद करके ऊपर से 2 किलो की आग दें। तो ये जला हुआ जो मवाद निकलेगा इसको पानी से धोएंगे तो पारे के रंगीन छरे मिलेंगे। धो के चरख दे लें, तब भी आपका शमस होगा। ये लर्जा पारा और उसके आगे 2 नुस्खे बता दिए मैंने कीमिया के। तो बाकी अभी कासमी साहब बात करना चाह रहे हैं। अगर नहीं बनेगा तो मैं अगर बना के आपको समझ नहीं आएगी बात, समझ से कम बात। अभी बना दे, अच्छा कल बना दे, ठीक। अच्छा भाई दोस्तों, ऐसी है बात कि मैं बूढ़ा आदमी हूँ, मरीज आदमी हूँ। मेरी उम्र जो है इस वक्त 66 है। 50 साल हो गए मुझे इस संन्यास के अंदर। मैं धक्के खा रहा हूँ दुनिया में। आप लोगों की और जनाब शाह साहब की ने फरमाया कि जनाब कासमी साहब आप ही आना। मैंने कहा मेरी आंखों का ऑपरेशन हुआ है, मैं नहीं आ सकता। 1 महीने तक, उन्होंने कहा कब तक? मैंने कहा जी 1 महीने तक। उन्होंने जनाब अलीना खास वाला जो है ना फंक्शन हम 1 महीना लेट कर देंगे, आपको वहाँ आना पड़ेगा। तो भाई मैं बीमार और मरीज़ होने के नाते फिर भी मैं आप लोगों के पास पहुँच गया हूँ। और इतना ये खतरनाक रास्ता है ना, इस खतरनाक रास्ते में मैं ज़िंदगी में ना आता। तो ये जनाब का जनाब ये जो जगह है ना बहुत ख़तरनाक है। वापस जाना जो है ना वो भी बहुत ख़तरनाक है। और रात के 2 बज चुके हैं, हमने होटल में भी जाना है। तो भाई हमसे छीन ली तो हम क्या करेंगे वहाँ पे? हाँ जी। और आप लोगों के लिए जनाब ये खिदमत के हाजिर हुए हैं।
आप ये सोचें कि इतना बूढ़ा आदमी, मरीज आदमी आप लोगों के पास मैं पहुंच गया हूँ। किबला शाह साहब ने फरमाया कि आना है। और ये देखो, मैं तस्दीक फहीम साहब की कि हम लोग अपने पास से डोनेशन भी देते हैं। और मेरी गाड़ी का फैसलाबाद से फैसलाबाद तक 30,000 रुपये का पेट्रोल लगा है मेरा। कितना? 30,000 रुपये का। और मेरा और भी यहाँ खर्चा होगा। हमने आप लोगों को जनाब यहाँ आज नुस्खे बताते हैं और हम गलत है फिर? ना यार, ऐसे ना कि आप लोगों के मेहमान हैं, मेहमानों के साथ ऐसे ज्यादती नहीं करनी चाहिए। तो मैं आप लोगों का मशकूर हूँ, ममनून हूँ। आप ये देखो कि हम तीनों आदमी जो है फैसलाबाद से ही आए हुए हैं और सिर्फ आप लोगों के लिए आए हैं। और ये जो नुस्खा मैंने आपको बताया रोगन निशादर वाला, इन दोनों से पूछ ले कि मैंने ये क्या चीज बताई, पूछ ले आप इनसे। मगर आप लोगों के ऊपर से ये नुस्खा निकल गया है। अगर आप लोग ये बनाए, इससे वाकई बहुत कमाल के फायदे निकलेंगे। ये जो नीला बनेगा ये बहुत अक्सीरी नीला है, हर मर्द पे ये काम करेगा। और एक हीरे का कुश्ता बनाया जनाब साबरी साहब से बनवाया मैंने 1 महीने की मेहनत करके बनवाया इनसे। और वो आप सुबह आपको मिलेगा, दिखाएंगे ये लोग। और वो ऐसा है कि वो 3 खुराकें खाने से माँ के पेट से न मर्द ना हो, वो 3 खुराकें अगर बर्दाश्त कर देना तो मुझे बताएं। 12 आग हीरे को दिए हमने। और 1 ग्राम जो है, उस 1 ग्राम को कुश्ते को अगर 1 पाव फटकड़ी के अंदर खर्ल करके 5 किलो की आग दे दे तो आपका 1 पाव कुश्ता वो हीरे का बन गया। 1 रत्ती जो है वो आप जिस मरीज को देंगे आप वही कमाल का होगा। मैंने नुस्खा बनवाया इनसे और मेरे साथ का ये नुस्खा था, किसी का नुस्खा नहीं है। और वो सुबह बयान करूंगा इंशाल्लाह, आप सुनेंगे और देखेंगे जनाब साबरी साहब ने ये नुस्खा बनाया। और यह भी है, ये दिखाएं जी, सही दिखाएं इनको। और इसके अंदर डायमंड है, सोना है, चांदी है, शाख मुरजान है और मरवारीद है। आप ये देखें कि 5 चीजें इसके अंदर हैं, 5 चीजें इसके अंदर हैं और कमाल की है। और 11 आग में ये बना है और फूल का कुश्ता हुआ है अलमास का। भाई आप लोगों की हम खिदमत के लिए आते हैं, हमें पैसे की जरूरत नहीं है। अब मैं आप लोगों को मैं अपना तारफ भी करवा दूं, मैं अंजुमन ताजरान का सरपरस्त वाला इस्लामाबाद का, चैम्बर ऑफ कॉमर्स का मैं एग्जेक्टिव मेंबर हूँ। भाई में मेरा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार है। हम कोई भाई मामूली आदमी नहीं है, आप लोगों के पास आ गए भाई आपकी खिदमत के लिए। ये भी आते हैं, ये भी पैसे लगा के आते हैं, ये भी आते हैं, ये भी पैसा लगा के आते हैं, मैं भी आता हूँ, मैं भी पैसे लगा के आता हूँ। हम भाई कोई पैसा लेते नहीं है, हम ये देते हैं, आप लोगों के लिए आए हैं। आप लोग थोड़ी सी बसीरत पकड़े, बसीरत पकड़ के इसको बनाए, आप इस नुस्खे को बनाए इंशाल्लाह। ये जो मैं सुबह नुस्खा बयान करूंगा, ये भी नुस्खा जनाब बहुत कमाल का है और साबरी साहब ने ये बनाया। और एक चीज आप मैं आज बताना चाहता हूँ, मैं बता दें, ये 20,000 रुपया मैं शाह साहब को डोनेट कर रहा हूँ आज। ये 20,000 रुपया की ये जनाब मेरी तरफ से खिदमत है। जनाब ये यूनिफिकेशन के मैं सरपरस्त वाला होने के नाते मुझसे कुछ फर्ज बनता है। तो ये जनाब साहब कि इन्होंने हमें वक़्त दिया और
हमारी खिदमत भी कीजिए, आप लोगों की भी खिदमत कीजिए। शाह साहब का मशहूर ममनून है और जनाब साहब का मशहूर ममनून है, मल्ले अबर साहब का मशहूर ममनून है, जनाब ये तारक दुबे साहब बैठे हैं, राणा साहब बैठे हैं, साबर मुल्तानी साहब बैठे, सादरी साहब। ये आप लोगों के खाने पीने में ईमानदारी के लिए बैठे। अजीज भाई ने बहुत मेहनत की है। मैं इनका मशहूर ममनून मैं बहुत मेहनत के साथ उन्होंने दिन रात एक करके कामयाब किया है काम। अजीज भाई ने बहुत माशाल्लाह जमा की है, बहुत खुश है माशाल्लाह बहुत नाइस आदमी है जी, ग्रेट आदमी है। अल्लाह ताला इनकी जिंदगी में तरक्की और उम्र में तरक्की अता फरमाए, कारोबार रिज़्क़ माल में बरकत दे। तो मेरे जी शुक्रिया जी। अच्छा एक कुव्वत बा का नुस्खा दिया, कुव्वत बा का जो हीरा कुश्ता अभी दिखाया साहब ने बनाया, वो वाकई बहुत कमाल की चीज है, इसमें कोई शक नहीं। सुबह नुस्खा बयान करेंगे, तवज्जो से सुने, बनाएं और उसका रिजल्ट भी शेयर किया करें कि ये चीज़ हमने बनाई है। ना समझ आए तो उसके ऊपर बहस ना किया करें, पूछ लिया करें। एक नुस्खा मैं भी दे रहा हूँ कुव्वत बा का, और लाजवाब किस्म का होगा इंशाल्लाह। 3 खुराकें देंगे तो कुव्वत बा, जैसे कासमी साहब ने फरमाया कि पैदाइशी तौर पे ना मर्द ना हो, गलत कारियों से हो गया हो, वो मर्द कामल बन जाएगा। आधा किलो खरातीन लेने हैं, खरातीन आधा किलो खरातीन कैंचुए, फार्मी नहीं लेने जो पंसार से मिलते हैं चाइना के, वो नहीं लेने, देसी लें, खुद निकालें ज़मीन में से, आजकल बारिशें आम मिल जाते हैं। तो उसको पहले खट्टी लस्सी से साफ कर लें, उसकी मट्टी वगैरह निकाल दें, फिर उसको ना सिपरट के अंदर भिगो के रख दें खुले मुंह। जब बड़ा बड़ा सिपरट उड़ जाएगा ना तो ये बेहतरीन खुश्क होंगे, गलेंगे नहीं, बू नहीं देंगे, खराब नहीं होंगे। इसको धूप में रखें फिर ताकि सिपरट की बू खत्म हो जाए। ये आधा किलो खुश्क किए हुए लेने, इसको लेके पीस लें, पीस के इसके अंदर आधा किलो के अंदर ना 1 पाव नशादा ठीकरी पीस के डाल मिक्स कर दें। इसको रोगनी कुजी में बंद करके 50 किलो ओपलों की आग दें, गड़े के अंदर ऊपर नीचे आग देगा। जब ठंडा करके निकालेंगे आपको जो हंडिया है, कुजी है, खाली मिलेगी। इसको पानी डाल के धोएं तो इसका जो खरातीन का तांबा है नीचे मिलेगा। ये खरातीन का तांबा निकाल लिया हमने। अगर तांबा आपके पास 50 ग्राम है खरातीन का निकला हुआ इस तरीके से, तो उसके अंदर 1 ग्राम हीरा कुश्ता खरल कर, 100 ग्राम शीर मदार खरल करके इसकी टिक्की बनाएं, बंद करके 20 किलो ओपलों की आग दें, ठंडा करें, ठंडा करके फिर 100 ग्राम शीर मदार खरल में फैलाएं, टिक्की बनाएं, फिर आग दें। इस तरह 5 अमल करें शीर मदार के साथ। ये सफ़ेद रंग का तांबा और हीरा कुश्ता तैयार हो गया। आधा चावल खुराक दे दे जी, 3-3 दिन के वक्फे से 3 खुराकें दे, इंशाल्लाह बंदा जो पहले 2 बीवियां ना वो कहेगा अब 4 करनी पड़ेंगी इंशाल्लाह। ऐसी कुव्वत है बात। ये मेरा प्रैक्टिकल है, ये मेरा प्रैक्टिकल है, जो इन्होंने बताया ना मेरा प्रैक्टिकल है ये। माशाल्लाह माशाल्लाह। तस्लीम करता हूँ इस अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? सब ठीक हैं जी? माशाल्लाह बहुत प्यारे बावन इमादन ने फ़हीम सनैसी साहब ने भी फार्मूले बयान किए और कासमी साहब ने माशाल्लाह बहुत अच्छा फार्मूला बयान किया। और जैसे कि उन्होंने बताया कि हम बताते हैं, माशाल्लाह इन्होंने अपना सदरी राज जो कि इनके उस्ताद कराम का था वो दिया और मैंने बनाया। जिस तरह उन्होंने जो हीरा है तो कुश्ता किसी तरीके से पिसक नहीं होता, तो उन्होंने उसको कुश्ता करके बताया और माशाल्लाह किया हुआ और बड़ा ज़बरदस्त हुआ। इसी तरह मैं 2 फार्मूले बताने लगा हूँ, ठीक है, जो कि इब्तदाई लोग कहते हैं कि निशादर का तेल नहीं होता, उसका समल फार का तेल नहीं होता, ये किशोरे का तेल नहीं होता, पड़कड़ी का तेल नहीं होता।
سارے تیل ایک ہی عمل میں ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، جو سا مرضی آپ تیل کر رہے ہیں، اور وہ بھی بہت آسانی سے جائیں گے. یہ نہیں پتا وہ کیمیا کی طرف کام کریں گے، خوراکی طور پہ کام کریں گے، انشاءاللہ ہوں گے بھی بہت زبردست اور ایک رزلٹ بھی دیں گے. کرنا کیا آپ نے، اگر آپ نے شورے کا تیل بنانا ہے، سب سے پہلے شورا لینا ہے. اگر آپ نے 100 گرام شورا لیا تو تیزاب گندھک لے لینا آپ نے 200 گرام، ٹھیک ہے. تیزاب گندھک آپ نے شورے میں ڈال کے باٹی میں ڈال کے رکھ لینا ہے، اور ریئیکشن ہوگا، جب ریئیکشن ہو کے ٹھنڈا ہو تو شیشے کے کسی برتن میں ڈال کے رکھ دیں، اور گرم جگہ پہ تھوڑے دنوں کے لیے رکھ دیں. جب آپ رکھیں گے تو وہ تیل مکتر ہو کے اوپر آ جائے گا، ٹھیک ہے، اور نیچے جو تیزاب ہوگا، ٹھیک ہے، آپ اس کو ریت جنتر تیزاب کو اڑا دیں، آپ کا شورے کا تیل حاصل ہو گیا. اسی طریقے سے آپ سمل فار کا تیل کر سکتے ہیں، اسی طریقے سے پرکڑی کا کر سکتے ہیں، اسی طرح سے نشادر کا تیل کر سکتے ہیں. اور اپنے کسی بھی عمل میں آپ نے کام کرنا ہے وہ آپ بہت آسانی سے لے سکتے ہیں. کیونکہ سب سے پہلے اگر آپ انہی عملوں میں آپ کریں گے، تیل کریں گے، تو انشاءاللہ وہ کامیابی کی طرف جائیں گے. اور دوسرا کہ نیلے کا تیل، نیلا سفید کرنے کے لیے لوگ بہت جدوجہد کرتے ہیں. کہ مثلاً ایک تو ہوتا ہے نا جو کیمیا کی طرف لے کے جانا ہے، اور بہت مشکل عمل بھی ہے، اور ایک بہت آسان سا عمل ہے جو کہ ہے یہ سمندر جاگ میں، ٹھیک ہے. سمندر جاگ میں آپ کو پتا ہے کہ ساری معدنیات وغیرہ سمندر کے اندر ہے، اس جاگ میں آ جاتی ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، 1 تولہ نیلے کی ڈلی لینی ہے، اس کے اوپر آپ نے 7 سے 8 تولے سمندر جاگ کو پیس کے اس کا گولا سا بنا لینا ہے. گولا سے بنا کے اس کے اندر آپ نے نیلے کی ڈلی رکھ دینی ہے، اور اس کو سوکھنے دینا ہے. سوکھنے کے بعد بند جگہ پہ آپ نے اس کے اوپر کولا رکھ دینا ہے. جب آپ کی سمندر جاگ ساری جلے گی تو آپ کا نیلا جو بالکل سفید ہوگا اور باکرنٹ ہوگا. انشاءاللہ استعمال کریں گے، پورا رزلٹ دے گا. ایک آپ کو جو قوت با کا نسخہ دینے لگا ہوں وہ بھی بڑا مجرب ہے، بہت اچھا ہے. وہ تو اس میں ہے کہ سمل فار میں نا یہ کردہ عمل ہے. آپ نے یہ لینا ہے تقریباً 6 انچ کا جو نا پیس لینا ہے، یہ 12 سنگا کا، ٹھیک ہے، 6 انچ کا، تھوڑا سا موٹا ہو. اس میں ڈرل کے ساتھ ہم نے سوراخ کر لینا ہے. ڈرل کے ساتھ سوراخ کر کے آپ نے سمل فار کی گلی ایک، ٹھیک ہے، 3 ماشے کی ہو جائے، 6 ماشے کی ہو جائے، جتنی بھی ڈال کے اوپر آپ نے برادہ ڈال دینا ہے. برادہ ڈال کے اس کو بند کر کے آپ نے اس کو گلی حکمت کر کے 3 کلو کی آگ دے دینی ہے. 3 کلو کی آگ دینے کے بعد جو آپ کا نکلا اس کے اندر صرف 1 تولہ ریگ ماہی آپ نے کھرد کرنی ہے، بہت اچھے طریقے سے کھرد کر کے. انشاءاللہ جو شہوت جس کی ہے ہی نہیں، بالکل کمزور ہے، اس کو انشاءاللہ ایک چاول دیں گے، دوسرے تیسرے دن انشاءاللہ وہ آپ کو بتائے گا کہ واقعی اس کا رزلٹ ہے. اور یہ جو 3 چیزیں میں بتائی ہیں کسی بھی قسم کے نقصان سے بغیر ہے، اور انشاءاللہ یہ مجرب چیزیں ہیں. بنائیں دعا میں یاد رکھنا. حکیم غلام مسعود صابری، المخدوم دعا کرنا. شکریہ.